remain the same. Nothing is going to change. So, my dear friends, today, being the first lecture of your 12th standard, we will go past and understand what we learned in 11th BK. So, in 11th BK, our first chapter was importance of bookkeeping. In fact, we started with meaning. क्या है bookkeeping? वहाँ से हमने start किया. So, meaning of bookkeeping, importance of bookkeeping हमने सीखा. ठीक है, उसके objectives क्या है, क्या जरूरत है bookkeeping करने का. Then we learned a very important chapter which is called as journal. What was that chapter? Journal. Then we learned ledger, we learned subsidiary books, preparation of various subsidiary books which included purchase book, sales book, purchase return, sales return. We tried to learn about cash book. Okay. And while preparing ledger account itself, we learned about preparation of trial balance. मॉर्निंग बैच वाले लोगों ने एक्स्ट्रा एक और टॉपिक सीखा दैट वाज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. इवनिंग बैच वाले लोग का ये रह गया है एंड आई प्रॉमिस आई विल टीच देम अबाउट द सेम. Apart from that, there were few topics which we did not learn due to shortage of time, and that was depreciation and single entry system. Of course, जो लोग जिंदगी में अकाउंट आगे सीखेंगे उन लोगों को इसका रेफरेंस आएगा, बट मैं आपको फिलहाल बोलना चाहता हूँ कि डोंट वरी अबाउट दैट. And the most important chapter which I am going to continue in 12th standard or rather start is final accounts. We had started learning final accounts when in between Harshal sir was not well and we discontinued with the lecture. So 11th standard और 12th standard में फर्क क्या है मेरे दोस्तों? 11th standard में you had final accounts of a sole trader. So who is a sole trader? Sole trader कौन है मेरे दोस्तों? Who is a sole trader? सोल म्हणजे एकटा, अकेला. ट्रेडर म्हणजे व्यापारी. जो अकेला बिजनेस करता है ऐसे बिजनेसमैन को हम सोल ट्रेडर बोलते हैं. तो अगर आप 11th स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस देखोगे ना तो उसमें सब जगह पर एक ही चीज हाईलाइट होता है, वो है सोल ट्रेडर. वही तुम जैसे ही 12th स्टैंडर्ड में आ जाओगे तो 12th स्टैंडर्ड में यू विल फाइंड everything is replaced by partnership firm. The first chapter itself is final accounts of a partnership firm. What is a partnership firm, my dear friends? What is a partnership firm? What is a partnership firm? What do you understand? दो जन साथ में बिजनेस करेंगे. When two or more person agree to continue a business together, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करने को तैयार होते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म. सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म में मेरे को बताओ सबसे बड़ा फर्क क्या पड़ता रहेगा? व्हाट वुड बी द बिगेस्ट डिफरेंस आपके हिसाब से? दोनों सेम रहेगा, क्या फर्क पड़ेगा आप मुझे बताओ. कैपिटल, ऑफ कोर्स, वेरी गुड. प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, यस ऋषिका, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सोल ट्रेडर में क्या होता है? अकेला मालिक होने की वजह से जितना प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, वो अकेला खा जाता था, वो पूरा का पूरा उसको मिल जाता था. लेकिन अब क्या होने वाला है? दैट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो उनका कुछ तो रेशियो भी होना चाहिए जिसके बेसिस के ऊपर ये कैलकुलेशन होगा. Are you all with me in the same page? Are you understanding? So you have this topic called as final accounts of partnership firm, जहां से मैं ये साल आपका 12th का शुरुआत करने वाला हूँ. Then my dear friends, you have topics related to partnership, which is called as admission of a partner. Tell me, what do you understand when you hear the word admission of a partner? क्या समझते हो? What do you understand when you hear the word admission of a partner?
partner is added. परफेक्ट, वेरी गुड। जब एक व्यक्ति को, बाहर के व्यक्ति को अपने फर्म में अपन पार्टनर जैसा मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक आदमी या एक फर्म एक पार्टनर को या एक व्यक्ति को अपना पार्टनर क्यों बनाएगा? क्या कारण हो सकता है आपको? अगर मैं पूछूं, आपको कुछ नहीं आता है, स्टिल आई एम आस्किंग, जनरल नॉलेज, आपको क्या लगता है? वेरी गुड ऋतिक, दिस इज वंडरफुल। ट्रस्ट और प्रॉफिट बाद में आता है। अच्छा, तेरा सोच ऋषि का खुद का बिजनेस रहेगा, तो क्या किसी को ऐसे ही राह चलते आदमी को या मेरे को पहचानती है, तो वुड यू टेक मी एज ए पार्टनर इन योर फर्म? तो नहीं, आंसर इज नो। काय को किसी को लेने का? हाँ, एक में वह कारण है, अगर वो पैसा लेके आने वाला है, एक में वह कारण। यस, इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। दो जन मिलके ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन दोनों का पैसा कम पड़ रहा है और पैसे का रिक्वायरमेंट है, तो लोन लेने से अच्छा एक पार्टनर ले लिया तो फायदा होगा। ऐसा सोचने का जो पर्पज है, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग माय डियर फ्रेंड्स? 85 लोगों में से आई सी ओनली 10-12 people who are active. I want to see everybody's name scrolling up and down continuously. Only then I will understand that yes, you are a part of my discussion. Thank you very much. This is wonderful to see all of you participating. और मेरे लेक्चर में, हर लेक्चर में आपको अलर्ट रहना, एक्टिव रहना है मेरे दोस्तों, तो ही तुम्हारा ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा है। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम लोग बोला तो मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी भी बात कर रहा हूँ। It is not easy to look at the screen continuously and listen. By the way, one very basic suggestion I would like to give you on the very first day of this academic year is have one space for studying. How many of you have a study table? Type a me. Very good, very good. You must have a study. See, आप बोलोगे सर आम्ही 40 राहतो, आमच्याकडे घर छोटा आहे, बऱ्याचशा गोष्टी तुम्ही मला सांगू शकता। There are so many things that you may tell me. But मैं एक बात आपको बोलता हूँ, यानी मैं मेरे बच्चे लोगों को, मेरी बेटी अभी हार्डली शी इज इन 6th स्टैंडर्ड, बट आई टेल हर पढ़ने का जगह फिक्स होना चाहिए कि अगर मैं इस टेबल चेयर पे आके बैठा हूं तो मैं पढ़ाई करूं और कुछ नहीं। इधर आने के बाद मेरा मोबाइल थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर दूर रहेगा, और घर के क्या बोलता है ड्राइंग रूम में रहेगा, मैं वरेंडा में बैठता हूँ या थोड़े डिस्टेंस पर रहेगा। तुम अगर तुम्हारे अभी ऑफकोर्स तुम्हारे ऑनलाइन लेक्चर में तो मोबाइल के बिना काम नहीं होता है, बट स्टिल व्हाट आई मीन टू से इज दैट तुम लोग अगर बेड पे बैठ के पढ़ाई करोगे तो बेड पे एक ही काम होता है, अच्छा नींद। तुम बेड पे बैठ के पढ़ने का कोशिश करोगे, आई एम टेलिंग यू 9 out of 10 times you will fail. So don't make that basic mistake. घरी छोटा घर असलं तरी एक कोपरा, एक ऐसा कोना, एक ऐसा जगह, एक ऐसा टेबल, एक ऐसा कुर्सी बना के रखो जहां पर आप बैठकर स्ट्रेट बैठते हो। ऐसा, ये ऐसा किधर तो भी टेक किए, ऐसे सब नहीं, यू सिट स्ट्रेट एंड बिलीव मी वहीं से फर्क आना चालू हो गया। नहीं तो एक लड़का स्कूल में जाके अपने टीचर को बोलता है होमवर्क का नाही केलं, अशा टीचरने पूछा रहता उसको, वो बोलता है सर मी पडलो आणि मला लागलं। टीचर ऊपर से नीचे देखता है, बोलता है अरे कुठे पडलं, कुठे लागलं, काय नाही? बोलतो काय नाही सर मी बेडवर पडलो आणि माझे डोळे लागले। बेड पे एक ही काम होता है, वो है नींद। इसीलिए उस चक्कर में मत पड़ना। हाँ, पडलो आणि लागलं हे बहुत भारी वर्ड्स आहे। कुठे पडलं आणि कुठे लागलं हे आणि काय लागलं हे बहुत इम्पॉर्टंट होतं। सो पढ़ाई के लिए एक जगह अपना फिक्स रखना।
दिस इज माय फर्स्ट सजेशन कंसीडरिंग योर 12th एग्जामिनेशन। धीरे धीरे मैं बहुत सारे सजेशंस आप लोगों को साल भर देते रहूंगा, करोगे फायदा होगा। तो एक चैप्टर हमारा है जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दूसरा चैप्टर मैंने बताया उसी से बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तीसरा कोई गेस कर सकता है क्या? ऐसे चलो, तुमको कुछ मालूम ही नहीं लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ गेस। ऐसा पढ़ने में ना बहुत मजा है, मतलब कुछ आता नहीं, अपन बिंदास उड़ी मार रहे हो, करेक्ट निकल जाता है। एडमिशन में क्या होता है, एक पार्टनर आ रहा है, जर्नल एंट्री नहीं, जर्नल तो करना ही, जर्नल लेजर हो तो करना ही है, दैट इज द बेसिक बुक कीपिंग। बट नए नए प्रोसेस सीखेंगे, इसमें आएगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन में क्या हो गया, एक पार्टनर आया, रिटायरमेंट में क्या होएगा, रिटायरमेंट में क्या होएगा, एक पार्टनर जाएगा, तो आते वक्त फर्क पड़ता है तो जाते वक्त भी फर्क पड़ेगा ना दोस्तों। लॉस ऑफ ए पार्टनर नहीं बोलने का, इसका मीनिंग और अलग हो जाता है। वी लॉस्ट हिम मतलब अगला चैप्टर है वो एक्चुअली। यस, डेथ ऑफ अ पार्टनर। My dear friends, all everything related to partnership firm is going to be a part of your 12th standard. We have something called as dissolution of partnership firm. We have dissolution of partnership firm. Dissolution यानी क्या है? What is dissolution? To dissolve means what? खत्म, the end. पार्टनरशिप फर्म बंद हो सकता है क्या? यस, नो, डोंट नो? 100% हो सकता है। क्यों होगा पार्टनरशिप फर्म बंद? वाई वाई कैन ए पार्टनरशिप फर्म? यस, वेरी गुड अनन्या। लॉस, बिजनेस में कंटिन्यूस लॉस होता रहेगा तो बिजनेस बंद करना आसान है। यस, वेरी गुड। फाइट से ज्यादा अच्छा वर्ड फाइट यानी फिजिकल होता है। डिस्प्यूट्स अमॉन्ग पार्टनर्स, पार्टनर्स में आपस में मतभेद। डेथ ऑफ अ पार्टनर कैन बी वन ऑफ द रीजन। एखादा पार्टनर इंडिया छोड़ के चला गया, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, हाँ बरोबर। तो एक काम करे दूसरा आराम करे, ऐसा सब होता रहेगा तो लफड़ा है जिंदगी। कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं चलेगा जिंदगी में। अपन एक जबरदस्ती का पार्टनरशिप फॉर्म करते ही तुम लोग सब लोग, दैट इज ऑल्सो पार्टनरशिप। कुछ शादियां टिकती है, कुछ शादियां नहीं टिकती है। कारण क्या है, तो सबका अपना अपने स्टोरी अलग अलग है। सो कंसिडरिंग द वेरियस रीजंस, पार्टनरशिप फॉर्म बंद भी हो सकता है। सो मैक्सिमम सिलेबस ऑफ यू पीपल आर रिलेटेड टू पार्टनरशिप दिस ईयर। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर्स है, हर एक में नया नया चीज सीखने मिलेगा। Apart from all these things, my dear friends, you have a topic called as bills of exchange. Have you heard the word bills receivable, bills payable? हमने सुना हुआ है, बरोबर है। तो ये बिल्स रिसीवेबल क्या है और बिल्स पेएबल क्या है, उसके बारे में बहुत गहराई में, बहुत डेप्थ में हम लोग सीखने वाले हैं इन द चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। We learn in the chapter bills of exchange. My dear friends, apart from bills of exchange, you have one more topic which is called as final accounts of not for profit organization. Have you ever heard of this term called as not for profit organization? क्या होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? एनजीओस, करेक्ट। जो लोगों को सेवा देने के लिए बनाई जाती है। अब ये लॉकडाउन के टाइम पे आप सुनते हो बहुत सारे एनजीओस आगे आए और बहुत सारे लोगों का सेवा किया। तो उन लोगों का
इनकम और एक्सपेंस ये अलग होता है, रेगुलर बिजनेस से हटके होता है, तो उनका फाइनल अकाउंट्स पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट से काफी अलग होता है। यस, प्रॉफिट इज नेवर देयर एम इज सर्विस ओरिएंटेड, लोगों की सेवा करना, यही उनका सर्व पहला धर्म होता है। एंड देन फ्रॉम partnership firm, friends, we will move on towards something called as joint stock company. Different forms of commercial organization, आपको उसी में टॉपिक हुआ है कह रहे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपने सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब पढ़ा होगा। तो हम लोग अकाउंट्स में भी धीरे धीरे उसके तरफ जाएंगे, ठीक है। तो issue of shares is done by a joint stock company, especially those who are in SP, they have an advantage here। तुम लोग जितनी बातें 11वीं SP में सीखने वाले हो, उसका सब का यहाँ पर रेफरेंस आने वाला है, और मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। Then we have again something called as analysis of financial statements। क्या है? Analysis of financial statements। So these are the 9 topics that we have in your 12th syllabus। One more is there, which is computerized accounting tips। These 10 chapters are going to make your 12th BK syllabus। My dear friends, let me give you a slight warning that क्योंकि आप लोगों ने 11 पूरा 100% नहीं सीखा है, कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ जगहों पर तकलीफ आने वाली, एज ए टीचर मुझे भी आने वाली, एज ए स्टूडेंट आपको भी आने वाली। बहुत बार क्या होता है कि ना, मैं सोचता हूं कि ये आपको आता है, यू नो दिस, इट इज वेरी सिंपल। अगर बाय एनी चांस मैंने कोई टॉपिक बिना सिखाए, वैसे मैं होने नहीं दूंगा, आई विल बी एक्स्ट्रा अलर्ट इन योर बैच, बट अगर कभी ऐसा हो जाए तो मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई तो भी एक जन आगे बढ़कर बोलो, सर ये हुआ नहीं, वी आर नॉट टॉट अस दिस, प्लीज टीच अस। उस टाइम पे सर मला भीती वाटते, सर तुम्ही काय विचार करणार माझ्याबद्दल, सर हे असं झालं तर, हे सब सोचते बैठो। आई एम सेइंग दिस इन योर वेरी फर्स्ट लेक्चर, आई गिव यू दैट अथॉरिटी कि यू कॅन टेल मी, सर हे झालं नाही आमचं, हे करून घ्या। मैं तुम लोगों को, आई लुक यू ऑल एज माई फ्रेंड्स। बस इतना है कि थोड़ा उम्र में ज्यादा हूं, तो उतना कि रास्ते में कहीं मिल गया तो क्या इशू, कैसा है, ऐसा मत करो, बाकी सब ठीक। तू ही तो बोला दोस्त है, दोस्ती में सब चलता है। इतना छोड़कर बाकी सब के लिए मैं आई एम ऑलवेज रेडी, and we will have a very rocking time। I will ensure that you get the best। सिर्फ उस चीज से डर लगता है, आजकल बच्चे लोग बहुत एडवांस। तो आज जो मैं टॉपिक आप लोग के साथ चालू कर रहा था, बिकॉज नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, मैं पेपर पैटर्न वगैरह में फिलहाल बात नहीं करता हूँ, बोर हो जाओगे तुम लोग, कि ये पार्टनरशिप ऑफ फाइनल अकाउंट्स ये आपका सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, आउट ऑफ 80 मार्क्स दिस कैरी 16 मार्क्स, यानी दिस इज 20% ऑफ योर सिलेबस। ये चैप्टर हो गया तो 20% हो गया, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स हमको बहुत अच्छे से सीखना है, बट समवेयर इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव नॉट प्रैक्टिस, तो वी विल प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए जो ब्रिज आता है वो क्या है, दैट इज द ट्रायल बैलेंस। तो आज का लेक्चर अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस। आपको याद रहेगा कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, बट बीच में मैं कहीं और रास्ते में आपको लेके गया। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? तो माय डियर फ्रेंड्स, अ ट्रायल बैलेंस हमेशा मैं बोलता हूँ इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस।
ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। कहाँ से मिलता है तो ट्रायल बैलेंस कहाँ से मिलता है मेरे दोस्तों? ट्रायल बैलेंस किसकी मदद से बनाते हैं हम लोग? किसकी मदद से बनाते हैं हम लोग? यस, अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर अकाउंट्स। Some ledgers have debit balances and some ledger accounts have credit balances. Some ledger account have debit balances and some ledger account has credit balances. So at the end of the year, these balances are written on a single, by way of a single statement, and that statement is called as a trial balance. तुम बोलोगे सर हमने तो ट्रायल बैलेंस बनाया, आपने हमको सिखाया, वो उसका नमूना था। हमने उधर ट्रांजैक्शन टू ट्रायल बैलेंस सीखा। हमने वहां पर ट्रांजैक्शन से जर्नल बनाया, जर्नल से लेजर बनाया, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया। बट एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपको क्वेश्चन में लेजर का लिस्ट दिया जाता है। आपको लेजर का लिस्ट दिया जाता है। सो हम लोगों को क्या दिया रहेगा? एक लिस्ट दिया रहेगा और बोला जाएगा प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द गिवन डेटा। तो मैंने आप लोग को देखोगे व्हाट्सएप ग्रुप में अपना एक अभी शीट पोस्ट किया हुआ है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट। तो उसमें मैंने थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस का थियरी भी रखा है और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी रखा है। फिलहाल के तो मैं स्क्रीन शो कर रहा हूँ, आपको दिखेगा। बाद में भी आप चाहते हो तो आपके मोबाइल पे पीडीएफ है। अच्छा, ये पीडीएफ मैं आपको सेंड करते रहूंगा जरूरत पड़ने के हिसाब से, वरना कुछ दिनों में आई विल, जैसे ही लॉकडाउन खुल जाता है, आई विल अरेंज टू गिव यू टेक्स्ट बुक्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड। प्लीज डोंट परचेज टेक्स्ट बुक्स। लास्ट ईयर 11th में कुछ स्टूडेंट्स लोगों ने घाई गड़बड़ में टेक्स्ट बुक्स खरीद लिया था। टेक्स्ट बुक्स इज द बेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, एंड बोर्ड एग्जाम्स में क्लियर कट बोला है कि आपको टेक्स्ट बुक्स में से ही सिखाया जाएगा। इसीलिए मैं भी टेक्स्ट बुक ही यूज करूंगा सिखाने के लिए। आप लोग कोई टेक्स्ट बुक्स खरीदने को जाओ मत। आई विल गिव यू फ्रॉम माई एंड। हाँ, और इसके अलावा टेक्स्ट बुक से ही सिखाएंगे क्या सर? नहीं, 12th बीके में आई विल बी गिविंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाय वे ऑफ पीडीएफ। नाउ देयर आर टू थिंग्स, या तो आप पीडीएफ सेव करके अपने कंप्यूटर में कहीं रख लो, रहेगा तो, या मोबाइल में या अकाउंट में जीमेल रहेगा, वहां पर ईमेल में सेव करके रख लो, या द बेटर ऑप्शन इज आप उसका प्रिंट आउट निकाल लो। एक एक दो पेज ही देगा मैं, और एक फाइल में अच्छे से क्वेश्चंस आपके पास रहेगा। कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। सर तुमच्याकडे क्लास लावला तरी तुम्ही एक्स्ट्रा खर्च सांगता आम्हाला? नाही, मी हे तुमच्या चांगल्यासाठी सांगतो। पाहिजे तर करा, नहीं केलं तर मला काही फरक नहीं पड़णार। आई एम गिविंग यू बिकॉज आई कैन नॉट गिव यू नोट्स। अगर अपन ऑफलाइन होते थे तो शायद मैं आपको पेपर दे दिया होता, बट क्योंकि हम लोग ऑनलाइन है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है सिवाय पीडीएफ। एंड प्लीज टेल ऑल दीज थिंग्स टू योर पेरेंट्स प्रॉपरली, क्योंकि पेरेंट्स बेचारे लोग अनइन्फॉर्म्ड रहते हैं। उन लोग फिर आके वापस बोलते हैं सर हे नाही झालं, ते नाही झालं, असं नाही झालं, तसं नाही झालं। I hope everyone will inform all these things. Okay. So question number 1 says following balances are extracted from the following ledger of Mr. Anmol for the year ended 31st December 2000. Prepare a trial balance. So my dear friends, आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। लिस्ट आपके सामने है, आपको आता है, मैं जानता हूँ, बट स्टिल आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। मैं तुम्हारे साथ में ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा। यू हैव टू टेल मी द गिवन बैलेंस हैज व्हिच लेजर, सॉरी व्हिच काइंड ऑफ बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त मेसर्स कंपनी का नाम लिखते हैं,
इधर इन द बुक्स ऑफ नहीं लिखते, मेसर्स लिखते। मेसर्स, मेसर्स का भी स्टोरी है। मेसर्स का स्टोरी आपको मालूम है? मेसर्स किसको लिखते हैं? मेसर्स लेकिन आप लोगों को सिखाने को बहुत मजा आएगा। दिस इज मिस्टर, इज मिस्टर, ये सबको मालूम है ना, मिस्टर लिखते हैं। किसी भी मेल व्यक्ति का नाम लिखने का रहेगा तो यू राइट मिस्टर। मिस्टर राज, मिस्टर अनीश, मिस्टर अभिषेक, मिस्टर प्रवीण। अच्छा, मिस्टर कभी लिखते, इसका भी एक रूल होता है। whenever you address somebody, whenever you address somebody else, मैं कभी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते वक्त मैं कभी नहीं बोलूंगा आई एम मिस्टर विश्वनाथन अय्यर। मेरे को अपने आप में कोई डाउट नहीं है। मैं इंट्रोड्यूस करते वक्त आई विल से आई एम विश्वनाथन अय्यर। स्वतः इंट्रोड्यूस करताना कधीही मिस्टर मिस कधीही वापरायचं नाही। समजलं का? अब गर्ल्स को क्या नाम से बुलाते हैं? हाउ आर गर्ल्स रेफर्ड एज? सिद्धांत से मिसेस। तो इसमें से किसी को मिसेस बुलाएगा क्या रे? मीनाक्षी भी बोलती है मिसेस। No, no, you are not master, Siddhant. You are grown up now. Don't call yourself master, is only for 5 and 7-year-old boys. You still want to be called as master. 40 का हो जाएगा तो ही बोलेगा मैं मास्टर है करके। मास्टर ब्लास्टर अपने देश का एक ही है, सचिन तेंदुलकर। ओके, देयर इज, या नॉलेज बहुत कम है, इसीलिए मैं आपको ये मतलब कौन से चीज पे मैं तुमको नॉलेज दूंगा तुम लोग हैरान हो जाओगे यार ये सब क्या चीजें है। अभी क्या होता है ना, पहले के जमाने में औरतें लिखते वक्त शादी नहीं हुआ तो मिस, शादी हो गया तो मिसेस, ऐसा लिखते थे फॉर द फीमेल। लेकिन अपने देश के वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग है। सारे आदमी लोग मतलब सारे लड़के लोग संभाल के रहना, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, तुम ऐसा सोचते रहोगे रास्ते में चलते वक्त किसी को छेड़ दिया तो वो रोएगी करके, लेकिन अगर उसने जाके ना पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दिया कि ये लड़का मेरे को तकलीफ देता है, तो पुलिस आओ देखेगा ना तो सीधा उसको उठा के जाके अंदर लेके जाएगा और हनुमान बना देगा। पूछेगा भी नहीं कि तूने क्या बोला। हनुमान मतलब सब जगह सुझा देगा। कितनी डेंजर है लड़की, उसके पास पावर्स। तो देश का कानून पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा तुम लोग वाकड़े में गए तो वाकड़े हो जाओ। हाँ, तो पहले के जमाने में लोग लिखते थे मिस या मिसेस, तो ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशन पूरे भड़क गए, बोले हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रहा है। कोर्ट ने पूछा यार इसमें क्या नाइंसाफी है, नाम के आगे मिस या मिसेस? बोलता है आदमी लोगों के नाम के आगे मिस्टर लगाते हो, बरोबर है। मिस्टर सिद्धांत नायर, ये नाम देख के समझ में आता है कि इसका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। मिस्टर विश्वनाथन अय्यर नहीं समजता है। पण आमचं नाव लिहिताना लग्न झाल्या अगोदर मिस लिहायचं आणि लग्न झाल्यानंतर मिसेस लिहायचं, लगेच समजून येतो लग्न झालंय की नाही। तसं आम्हाला मंगळसूत्र घालावं लागतो, तसं आम्हाला ते टिक्का लावावं लागतं, म्हणजे तुम्ही आम्हाला कमी दाखवता, ऐसा बोला। तो कोर्ट भी बोला यार ये तो सही है, नाइंसाफी है। तो उन लोग आज की तारीख में मिस या मिसेज नहीं लिखते, एवरीबडी लाइक्स मिस, MS, दैट्स इट फॉर एनी फीमेल।
any male is referred as Mr. and any female is referred as Miss. लॉजिक समझा? आज के बाद कभी मिस या मिसेस बोलने का नाही, फक्त मिस, दॅट्स इट. आणि लिहिताना एम मोठा आणि एस छोटा. ओके. पण आपल्याकडचे बिचारे लोक काय करतात, मिस सांगितल्यावर असं लिहितात. हे तिसरा प्रकार झाला. हे झालं मेसर्स. And this is for all the business organizations. So, Mr., Miss and Messrs. Mr. for male, Miss for female, and Messrs for all business organizations. लक्षात ठेवा. So here we have Messrs. Anmol. We are preparing trial balance as on. कधी पण ट्रायल बॅलन्स we prepare as on. डेट दिलेला आहे 31 डिसेंबर 2000. हमने सीखा था बुक कीपिंग इज एन आर्ट. तो कभी भी इसमें बहुत सारा आर्ट का काम आएगा, कॉलम्स ड्रॉ करने का काम आएगा. तो there are two ways of preparing a trial balance. One is journal form, other is ledger form. I am preparing a journal form. यहाँ पर तीन मुख्य अकाउंट्स होते हैं या कॉलम्स होते हैं. एक होता है पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. So all debit balances will be written in the debit column and all credit balances in the credit column. Everyone is able to see and understand, my dear friends? अरे मेसर्स दुकान का नाम होता है. मेसर्स आदमी या औरत का नाम नहीं होता है. आदमी मिस्टर, औरत मिस. दुकान ऑर्गेनाइज कोचिंग क्लासेस, मेसर्स रिलायंस इंडिया कॉर्पोरेशन, मेसर्स इंडियन रेलवेज, मेसर्स आरकेटी कॉलेज, मेसर्स साकेत कॉलेज. किसने पूछा था मिस्टर हो या मिस मेसर्स कहते हैं क्या? संस्कृत में पूछा. तो अभी मैं एक एक बैलेंसेस पढ़ेगा, आप मुझे बताओगे डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस. बताओगे? ओनली योर आंसर. घाई मत करो और रॉन्ग मत करना. Yes. So, some things you know. If you don't know anything, I am there to help. Purchases. Yes, debit balance. Very good. Debit के कॉलम में लिखेंगे 97,000. Next में sales. Credit balance 1,47,000. के बाद दिया है कैपिटल. विल बी सारा कैपिटल. डेबिट बैलेंस कभी नहीं हो सकता रे, जिंदगी में याद रख लो. मेरा ट्रायल बैलेंस का लेक्चर सुनना वापिस एक बार. उधर मैंने वो लिस्ट दिया हुआ है. कैपिटल इज ऑलवेज अ क्रेडिट बैलेंस. हम लोग इसलिए वो सिखाते थे ताकि ये ट्रायल बैलेंस बनाने को काम में आए. ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स इज अ डेबिट बैलेंस. Amount is ₹7,000. Discount received. Discount received. Yes, it is a credit balance. 1,500. अब बाद में डिस्काउंट दिया मतलब ऑब्वियसली दैट विल बी डिस्काउंट अलाउड. Discount allowed. Yes, that will be debit balance. 1,000, 2,000. For sundry debtors. Very good.
Raj. Yes, it is debit balance. Amount 59,000. What about sundry creditors? Yes, very good. That is a credit balance. 30,000. Bank balance. Yes, debit balance. उन्होंने दिया कमीशन क्रेडिट। बोलो कमीशन क्रेडिट का क्या मतलब है रे? कमीशन क्रेडिट का क्या मतलब है? यस इट इज कमीशन रिसीव। मैं पूछा उसका मीनिंग बताओ, क्रेडिट बोलो मत। मीनिंग क्या है पूछ रहा हूं मैं। कमीशन क्रेडिट में आया मतलब कमीशन रिसीव। और कमीशन डेबिट का मतलब क्या है? कमीशन डेबिट का मतलब क्या है? यस, कमीशन पेड, कमीशन गिवन, कमीशन अलाउड। 1,500. Purchase returns 5,000. Sales return, नेटवर्क आके गया बीच में। Hello everybody, I'm awaiting your answers.
Yeah, thank you for being there patiently. I had a technical disruption और ये होते रहेगा. लाइफ में तकलीफें आने वाली है. हाउ वी ओवरकम दैट इज द बेस्ट पार्ट. तो सेल्स रिटर्न आप लोग थे क्या मेरे साथ में? परफेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न हो गया. नेक्स्ट इज मशीनरी 30,000. चलो मशीनरी परफेक्ट डेबिट बैलेंस ऐसे है. नेक्स्ट दिया है फर्नीचर 6,000. फर्नीचर 6,000. Yes, that is also debit asset. Opening stock, that is also debit 3,000. Stock is also our asset, so that will also be a debit balance. Value is 3,000. Salary 8,000. Salary 8,000 because it is an expense. फिर आया कन्वेयंस 1,000. कन्वेयंस भी खर्चा है, डेबिट बैलेंस ही दिखाएगा. अब देखो सन्ड्री एक्सपेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, मोटर कार एक्सपेंसेस सब खर्चा है. ठीक है. कन्वेयंस के बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद postage and telegram. Postage and telegram के बाद मोटर कार एक्सपेंसेस सब हमारा खर्चा है. 1,000, 1,000 and 2,000. Cash in hand. Cash in hand also is an asset. Even that will have a debit balance 1,500. नेक्स्ट वन बोलो फ्रेंड्स. लोन फ्रॉम मिस्टर बिमल. हमने अगर किसी से लोन लिया है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, so it will be a credit balance. Perfect. Amount will be rupees 16,000. Printing and stationery. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हम लोगों का खर्चा है, डेबिट बैलेंस. और इंटरेस्ट उन्होंने ही दिया है, क्रेडिट यानी इंटरेस्ट रिसीव 1,500. दिया हुआ लिस्ट को हम लोगों ने डेबिट और क्रेडिट अलग अलग कर दिया. एक बार हमने अलग अलग कर दिया मेरे दोस्तों, तो अगला काम होता है टोटल कैलकुलेट करना. I want all the boys to calculate the total of debit side, while all the girls to calculate the total of credit side. All boys calculate the total of debit side. All girls calculate the total of credit side. So it is 5 plus 5, 10, 15, 1 carry forward. 2, 4, 5, 6, 7, 15, 18, 24, 31, 32, 37, 46, 48, 55, 55, 62, 15, 20, 21, 24, 24. शायर है क्या बरोबर? 2,11,000. 11 कैसे आएगा? 3,500 तो मेरे को क्रेडिट में दिख रहे. कुछ गड़बड़ किया है बेटा. 242,500 आ रहा है क्या? तो वो डेबिट का आया. वॉइस भी किसी ने किया रहेगा तो एक बार कंफर्म करो. गर्ल्स का बहुत लोग का आंसर आ रहा है.
इस तरीके से आज अपन ने पहला पायदान डिस्कशन किया कि लिस्ट दिया रहता है, हम लोग को डेबिट और क्रेडिट अलग अलग करना होता है। डिड यू ऑल एंजॉय द लेक्चर? समझता तो सबको है, मजा आया क्या? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेक्चर में कुछ नया सीखने को मिला। अकाउंट्स तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा मैं, बहुत सारी छोटी छोटी जिंदगी की सच्चाई भी आपको सिखाते रहूंगा।